Students, this is Vishal Yadav. Welcome to our YouTube channel. So in this video, we will learn about all important trigonometric formula that is used in physics. It is very important video for the class 11th student that is preparing for their J or NEET examination. So let us start without wasting time. So all important trigonometric formulas in previous classes or class 10th you have learned that formulas that sine theta is equal to opposite side upon hypotenuse, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, tan theta is equal to opposite side upon adjacent side. And in these figures you also see that the angle theta and side opposite to angle theta, and that is the hypotenuse. What is hypotenuse? And that's you have to consider what is that hypotenuse. Hypotenuse is the longest side in the triangle. Now what hypotenuse is the longest side in the triangle. अब इन शॉर्ट हम इसको लर्न कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले को कैसे लर्न करेंगे? अगर इन शॉर्ट हम पढ़ें तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस नो. अब इन शॉर्ट हम इसको कैसे लर्न करेंगे, ठीक है? जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, एंड रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू पी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस. इन शॉर्ट अगर आप समझना चाहे तो आप पहले से ही क्लास 10th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा. फिर से मैं रिमेम्बर करा दे रहा हूँ क्योंकि रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नो. सो शॉर्ट ट्रिक टू लर्न इज़ व्हाट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. व्हाट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. एंड इन रेसिप्रोकल कॉसेक सेक कॉट थीटा हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद. समवन कॉल दैट्स निमोनिक्स. हाँ, आप निमोनिक्स इसको बोल सकते हैं. शॉर्ट ट्रिक बोले चाहे निमोनिक्स बोले, दोनों एक ही है. तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे. स्टूडेंट हम लोग आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेज पे. तो ये हमारा नया इंटरफेस है जिस पे देखिए पहला फॉर्मूला लिखा है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज व्हाट? cosec theta is reciprocal of sin theta. No, cosec theta is reciprocal of sin theta, or you can say that sin theta is reciprocal of cosec theta. And next, sec theta is the reciprocal of cos theta, and you can say that cos theta is the reciprocal of sec theta. And next formula, that is cot theta, and the cot theta is the reciprocal of tan theta. And next new formula that is also you have learned in class 10th, that is sin square theta plus cos square theta is 1, or you can write it as sin square is equal to 1 minus cos square theta, or cos square theta minus 1 is equal to minus sin square theta. So in many ways you can write, but main formula is that sin square theta plus cos square theta. And next, 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. You have to remember that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. You can also written as cot square theta minus cosec square theta is equal to minus 1, and cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. And the next formula number 6, tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, and you can also write as tan square theta minus sec square theta. So
ट्रिग्नोमेट्री इज़ सो ईजी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टफ लगता है, बट जो पढ़ेगा तो उसके लिए तो ईजी है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने पूरी चीज़ जो हमने प्रीवियस इंटरफेस में पढ़ा वो भी हम लोग क्लास 10th पढ़े थे। ये पूरी चीज़ भी हम लोग क्लास 10th में पढ़े थे। तो क्लास 11th में अभी कुछ नया आएगा, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसा है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये जो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है ना, ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जैसे इसमें आ जाता है आपका वैल्यूज़ याद करनी होती है, तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ में आ जाती है। ठीक है, इसमें हमको वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना था, जो हमारे मैथमेटिक्स रहता है। तो ये क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये हम जो आपको पढ़ा रहे हैं ये बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हमारे क्लास 11th के फिज़िक्स में यूज़ होगी, वही चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0, फिर उसके बाद साइन 30 डिग्री की हो जाएगी 45 डिग्री की 1/√2, फिर 60 डिग्री की √3/2, साइन 90 डिग्री की 1। तो इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको लर्न करने की एक टेक्निक बताता हूँ। जैसे अब इसमें आपको ये लर्न करना पड़ेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको लर्न करके आप पूरे टेबल को लर्न कर सकते हैं। क्या, पूरे टेबल को आप लर्न कर सकते हो। वो कैसे लर्न कर सकते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। पहले आप ये यूज़ कर लीजिए, पूरा साइन थीटा का पूरा लिख दीजिए 0, 30, 45, 60 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री तक। फिर उसके बाद उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए। ठीक है, और जैसा कि हमने फार्मूला पढ़ा ही था अभी आगे जाके, ये फार्मूला नंबर फर्स्ट यहाँ पे पढ़ा है ना, तो साइन थीटा इजक्वल टू टेन थीटा इजक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो उसको हम ऐसे करेंगे तो ये हमारा टेन थीटा निकल जाएगा। और ये भी हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, तो वो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो आप रेसिप्रोकल करके ये सब, फिर उसके बाद कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, फिर टेन थीटा कॉट थीटा का होता है। तो ऐसे आप निकाल सकते हो। अगर आप ये भी नहीं लर्न कर सकते, साइन थीटा भी पूरा नहीं लर्न कर सकते, तो मैं आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। 0, 1, 2, 3, 4, ये तो नंबरिंग तो आपको आती ही होगी ना। तो 0, 1, 2, 3, 4 करके आपको मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे उसको लर्न करना है। हाँ, तो मैं आपको बोल रहा था कि 0, 1, 2, 3, 4 करना है। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसे लिखना है, फिर उसका रूट कर देना है, फिर डिवाइडेड बाय √4 करना है। तो आपका ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल लर्न करने की ट्रिक तो बता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो अब ये नए फॉर्मूलेज आ रहे हैं, साइन थीटा साइन माइनस थीटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी ना, तो ये सब जो फॉर्मूलेज हैं ये आपको 11th में पढ़ने, 11th के कहाँ पे, फिज़िक्स में पढ़ने हैं। और जो मैथ लिए हैं तो उनके लिए तो है ही, मतलब जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो मिलेगा ही। मतलब जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फिज़िक्स में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला है, साइन माइनस थीटा इज़ इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो ये कैसे डिराइव हुआ, ये कैसे फॉर्मूला बना, तो उसको हम अभी अपने आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है मैं अभी आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, वो जो आगे एक्सप्लेनेशन है तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्मूला है आपका कॉस माइनस थीटा, that is cos theta is equal to cos theta, and that is what. Third is sin a plus b is equal to sin a cos b plus cos a sin b, नो। और ये जो sin a cos b के बीच में है वो मल्टीप्लाई है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्लस है, मल्टीप्लाई है कि ऐसे ही लिखा गया, नहीं, इसके बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन है साइन ए और कॉस बी के बीच में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इसके बीच में आपका है। फिर नेक्स्ट है आपका साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी है। ठीक है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला जो फिफ्थ है वो मैं आपको बताता हूँ, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये जो इंटरफेस है इसमें तो मैंने पूरे आपको फॉर्मूले पढ़ा दिए। अब हम नेक्स्ट इंटरफेस सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो चुका है, तो हम शुरू करते हैं।
ये फॉर्मूला नंबर 6 है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, एंड अब ये डिराइव कैसे होगा, सभी बच्चे सोचते होंगे ये कैसे डिराइव होगा। अभी हम लोग आने वाले वीडियोस में, हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी ट्रिग्नोमेट्री पे, जो फिज़िक्स के चैप्टर हैं, उसमें मैं सबको डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। वो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो आप पहले अभी थोड़ा देख तो लेते हैं क्या है इसमें, क्या बेसिक है। सब लोग सोचते हैं फिज़िक्स बहुत टफ है, कुछ टफ नहीं है बच्चा, कुछ टफ है ही नहीं। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो हर एक चीज़ इजी है, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है कि 7th की, ठीक है। 7th कौन सा है? 7th में आपका आ जाता है 10a प्लस बी, नो 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b अपॉन 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। और ये आपको याद रखना है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, ये जो बीच में दिख रहा है 10 और 10b, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है बच्चा। यहाँ पे आपका जो है ये मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाता है आपका, 8th वाला फार्मूला, ठीक है। 8th वाले फार्मूले में आपको करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 10a माइनस बी इज इक्वल टू वॉट, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। और यहाँ पे फिर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ये 10b जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब आपको फार्मूला नंबर 9 पढ़ना, ठीक है, फार्मूला नंबर 9। अब इसमें क्या करना है आपको, ये फार्मूला नंबर 9 है ना, साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं आपको इसको इरेज करके बताता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 फिर इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है, अगर आप इसको ऐसे भी रिटर्न कर सकते हो, ठीक है, साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपको बस रिमेंबर करने हैं, ठीक है, ये आपको बस याद करने हैं, वो तो लेकिन हाँ डेरिवेशंस होंगे उसको तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। बहुत बच्चे फिज़िक्स से डरते हैं कि बहुत सारे फार्मूलेस होंगे, नहीं नहीं कुछ नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो सब पढ़ डालोगे, ठीक है। अब आती है बात की 10th फार्मूला, 10वां फार्मूला। अभी आती है कॉस 2 थीटा, तो कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं कॉस प्लस साइन थीटा, कॉस माइनस साइन थीटा, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अब आपको आती है सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये देखो ये बहुत ही ट्रिक वाला फार्मूला है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत अच्छी ट्रिक लगती है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सो इसमें फार्मूला नंबर है कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। अब आती है बात, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन होता है और ये इसके बीच में भी ये भी मल्टीप्लिकेशन है। आपको मैं एरो बता देता हूँ, ये वाला जो एरो है ये वाला, ठीक है, यहाँ पे भी आपका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस साइन बी, वन सेकेंड, तो यहाँ पे साइन ए माइनस साइन बी, सॉरी साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2, and the next formula is third what, cos a plus cos b, once again cos a plus cos b, cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b by 2 into cos a minus b by 2, and next formula is cos a minus cos b is equal to -2, दैट्स यू रिमेंबर। यहाँ पे क्लियरली थोड़ा रिप्रेजेंट नहीं हुआ इंटरफेस में, ठीक है। तो यहाँ पे -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू
माइनस साइन ए बाई 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, थोड़ा सा कैमरे की वजह से वो दिख नहीं रहा है, मैं आपको बताता हूँ। इन ऑल दिस एव, इस शॉर्ट ट्रिक में लिखा हुआ है, और इन ऑल दिस एव 4 फार्मूला ना, इन ऑल दिस एव 4 फार्मूला a प्लस बी बाई 2 and a minus b by 2 is common, that you have also seen a plus b by 2 and a minus b by 2. So students, that's all our basic trigonometric formula that is used in 11th physics and 12th physics is completed. So time is very important, so I am not wasting your time. So without any wasting your time, I will end this video. So thank you very much. Subscribe our channel, hit the like button for your further studies. Bye bye.